Good morning, students. Today's topic is triangle brain teasers problem. First question is this is given in the book. A man goes 5 meter in east. So first of all, I am drawing north, south, east, west this direction and taking one point. Suppose this is starting point. This one is your starting point. From here it is going first of all which direction, 5 meter in east. So this diagram I have to change it. This is not correct. First of all, a man will go this direction, 5 meter east means this direction, 5 meter in east, and after that then 12 meter in north. So downside I am drawing. This is the starting point, and after going 5 meter, this covered 5 meter, and then 12 meter north means north direction is up. This is 12 meter. So question is there, what is the distance from the starting to end? So what this form? First gone towards east, so ये 0, this is starting east means right hand side and north means upside. So in this order we can draw this diagram. So we have to find the distance means this, and this will be 90 degree. So what forming here, how we can find this? This you will find by I am writing, you will do find by Pythagoras theorem. This one you can find by Pythagoras theorem. Now see question number 3. It is written here, one rectangle is given, 5 meter is width is given, and its diagonal is given. Diagonal means this is called diagonal. So we have to find the perimeter of this rectangle. So perimeter means what is perimeter? Perimeter means sum of all 4 sides. So if we know this 5, so this will be 5 no matter. But how we will find this one? So this is possible only by, this is rectangle and this is 90 degree. So this is possible by Pythagoras theorem. That is why I have written find the length of rectangle by Pythagoras theorem. Already you have solved how to find. This hypotenuse is given and one side given, so another side you find by Pythagoras theorem. And after find this value you will write here, and all 4 you will add, 1 2 3 4, all 4 sides you will add. That is the perimeter of the rectangle. Now question number 4, very interesting this question. It is given, see the diagram, PQR and SQR isosceles. This triangle and this triangle, there are 2 triangles, PQR bigger one and SQR, both are isosceles. Here these are isosceles, means these 2 sides are equal. So we have to find the value of this x. So how we will find? First of all पूरा एंगल निकाल लेते हैं. So I am rubbing for, थोड़ी देर के लिए इसको रब कर देता हूँ ऐसे. ओके, सो व्हाट विल बी दिस एंगल? लेट इट बी y. तो इधर भी आपका, इसको भी हटा देता हूँ अभी मैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका y दोनों, बिकॉज आइसोसेलिस ट्राइंगल है ना. तो PQ इज इक्वल टू PR ऑलरेडी गिवन, आइसोसेलिस है तो इसीलिए ये साइड इक्वल है. तो व्हाट वी नो अबाउट आइसोसेलिस ट्राइंगल? आइसोसेलिस ट्राइंगल में जानते हैं इफ द 2 साइड्स आर इक्वल देन अदर 2 एंगल्स अपोजिट एंगल विल बी इक्वल. सो एंगल Q और एंगल R को आई एम राइटिंग y. तो ये दोनों बराबर हो गया, दिस आई एम राइटिंग y. तो अब कैसे निकालें इस एंगल को? तो 30 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. ऐसा क्वेश्चन निकाल चुके हो. तो ये हो गया, इसके हेल्प से निकल गया. तो y का वैल्यू आ गया इससे 75 डिग्री. तो एंगल Q और एंगल R, इसी को बुक में फुल फॉर्म में लिखा है, PQR बोलो चाहे एंगल Q, बोथ द मीनिंग्स आर सेम. तो PQR और PRQ मतलब एंगल Q और एंगल R दोनों कितना आ गया? 75. अब मैं ड्रा कर रहा हूँ, जो पुराना था उसको ड्रा कर रहा हूँ. अब देखो ये दोनों ट्राइंगल, अब इसका निकालते हैं, इतना ही निकालते हैं. अब ऊपर का मैं रब कर दिया. अब क्या हुआ, फिर इस ट्राइंगल में ये 70 है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज जेड मान लिए. सॉल्व करना है ना, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस. तो एंगल SQR और एंगल SRQ दोनों सेम होगा फिर आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से.
तो दोनों सेम सेम ले लिया, ये 70 डिग्री हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी इस छोटे वाले में लगाए तो उससे कितना आ गया, जेड का वैल्यू ये 55 55। तो अब आपको याद रखना है, हाँ अब आई एम ज्वाइनिंग, ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना आया था 75 डिग्री, और ये कितना आया 55 डिग्री। तो ये कितना बचेगा ऊपर का पार्ट, ये यदि नीचे 55 है तो ऊपर कितना होगा 20, तब तो 75 बनेगा। तो वी विल फाइंड एंगल एक्स, यही आपका एंगल एक्स था। तो एक्स इज इक्वल टू पी क्यू आर, मतलब पूरा एंगल माइनस एस क्यू आर। एस क्यू आर पूरे में से इतना घटा दो, ये कितना है आया आपका 55 आ गया। तो पूरे में 75 में 55 गया, ऊपर का कितना बचा 20 डिग्री। तो लाइक दिस वे यू विल फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये थोड़ा इजी है। क्वेश्चन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर आइसोसेलिस है विथ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। मतलब पहले अभी मैं रफ कर देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। ये पी क्यू और पी आर आपका इक्वल दिया है, ठीक है, और लेटर ऑन पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, अभी खाली इतना ही रखते हैं, ऐसे है। तो ये यदि पैरेलल है तो आपका ये दोनों ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल दोनों बराबर होगा बाय क्या लिखें, बाय आइसोसेलिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R आपका हो गया। बट इसमें एक चीज़ वन थिंग गिवन, यहाँ से एक लाइन ऐसा दिया हुआ है L, ये क्या नाम है, दिस इज द L और M, ये इसके पैरेलल दिया है। तो ये इसके पैरेलल दिया है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, क्या एंगल PLM ये एंगल और ये Q बराबर है, यही पूछा है सेकंड में। PLM और एंगल Q बराबर है, गिव द रीजन, और रीजन भी बताना है। यस वाई, ये दोनों कौन सा पेयर दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑलरेडी यू हैव लर्न। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गया। अब थर्ड क्या है, PML को R के, तो सिमिलरली ऐसे इधर भी बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये भी करस्पॉन्डिंग है। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, यहाँ मैं लिखा भी हूँ बाय करस्पॉन्डिंग पेयर और LM पैरेलल टू QR, ये भी जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर वेन इक्वल, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, तभी जो पेयर बनेगा ना करस्पॉन्डिंग, देन विल बी इक्वल। जब तक ये दोनों पैरेलल नहीं होगा ये एंगल इक्वल नहीं होता। तो ये तो दिया है LM इज पैरेलल टू QR, तो ये लिखना जरूरी है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल और LM इज पैरेलल टू QR, ये दोनों लिखेंगे तब जाके ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अब पूछ रहा है कि क्या ये इसके बराबर है, PLM एंड PML आर इक्वल, फोर्थ पॉइंट है। तो यस क्यों होगा, ये दोनों बराबर है और ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, चारों तो बराबर हो गया। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा 50 ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर बोल रहे हैं। अब ये 50 है तो इसके बराबर ये बताए थे, तो ये 50 हो गया, और ये 50 है तो ये भी 50 बताए थे करस्पॉन्डिंग, तो चारों इक्वल हो गया, ऑल फोर विल बी इक्वल। तो क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, इज ट्राइंगल PLM क्या आइसोसेलिस है, ये पूछ रहा है फाइनली। मतलब ये PLM आइसोसेलिस है, तो यस आइसोसेलिस हो गया, क्योंकि दो एंगल इक्वल आ गया, तो ये दोनों आपका साइड बराबर है। दैट आई हैव रिटन, यस PLM इज आइसोसेलिस बिकॉज एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, सो PL इज इक्वल टू PM बाई कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ लिख सकते हो बाई आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं। Now we will see question number, okay, rest part. Question number this I am explaining here because we don't have here space. Is in an isosceles triangle the base angle is twice as large as vertex angle. Find the angle of the triangle. तो मैं ये बता देता हूँ कि vertex angle और इसको क्या है. You have solved such type question. ये isosceles triangle है suppose, तो ये दोनों बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल और इसको बेस एंगल बोला जाता है। तो इट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है, बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। मान लो वर्टेक्स x है,
तो इसको हम लोग को 2x लेना पड़ेगा, ये दोनों को, ये 2x, ये 2x और ये x। तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल में ऐसे ले लेना, ये x लोगे तो ये दोनों 2x हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देन फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। बहुत ईजी है, तीनों का व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल थ्री, x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये एक आइसोसेलिस बनाना, उसमें एक x लेना, तो ये वर्टेक्स एंगल x होगा, तो अदर टू एंगल विल बी 2x 2x, और तीनों का सम 180 करके निकाल लेना। ये आपका दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो टुडेज योर होमवर्क इज अप टिल क्वेश्चन नंबर 6 इन फेयर कॉपी, और इधर पूरा जितना बन सकता है आप बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको प्रैक्टिकली देखना। क्वेश्चन 8 भी बन जाएगा। 9 ड्राइंग वाला है इधर। सो दिस साइड एज many possible you solve and which unable to, and मैं all I will explain one time, but it is better to solve before my explanation. Okay.